Hi students. So till now we were discussing about the nutritional disorders, malnutrition, and problem or disease caused by the malnutrition. So in that course, we have already discussed about the kwashiorkor. Today we'll discuss about the marasmus and other different types of mode of nutrition in detail. Now, marasmus means we have discussed that marasmus is a deficiency which is not only actually happening because of it is not occur due to the deficiency of protein only, but here protein and also the other total food, other different types of nutrition are also not available or not given to the child in required quantity. Sorry. तो हमने अभी क्या देखा कि जो क्वाशियरकर है उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्रोटीन है उसका डेफिशिएंसी होता है बेसिकली। लेकिन मायरसमस मतलब प्रोटीन के साथ बाकी जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसमें भी मतलब वो भी कम रहता है, वो भी सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे को, तब जाके इस तरह का प्रॉब्लम हमें दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम एक बार डायग्राम के साथ देख लेंगे। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे marasmus, the disease it is caused by the deficiency of protein and the total food calorific value। तो total food calorific value मतलब all the other important nutrients like carbohydrates and fat। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सब जब ठीक से सफिशिएंट क्वांटिटी में बच्चे को नहीं मिलता है तब जाके उनको the condition, which type of malnutrition condition the child will have, that is called marasmus। ठीक है, and it is common in the infant under 1 year of age। और basically ये marasmus जो disease है ये साल के कम बच्चे में दिखता है normally। ठीक है, symptoms क्या है? It includes the impaired physical growth, then subcutaneous fat disappears, subcutaneous fat disappears and ribs become very prominent, limbs become thin and skin become dry and wrinkled, there is no oedema and leg और एडिमा जिसको हमने लास्ट पे पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, इट्स अबाउट दी क्वाशियरकर। एडिमा होता है टिश्यू में आपका वाटर जाके सिकेट हो जाता है, पढ़ा था हमने, राइट, on the leg and the face, but loss of weight occurs। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे जो marasmus का डिजीज है वो बेसिकली loss of hair, then loss of weight, then loss of the adipose tissue, loss of fat in the subcutaneous membrane। मतलब जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में जो फैट होता है वो ज्यादातर ये इसमें इन बच्चों में नहीं मिलता। इससे क्या होता है, रिब्स जो है वो बहुत ही विजिबल हो जाता है, क्लियरली दिखता है, समझ में आता है रिब्स, एंड दे हैव wrinkled skin एंड मसल इज ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है, तो एक मैरास्मस वाला बच्चे का ये बेसिक जो मैरास्मस जो जिन बच्चों को है, those who are suffering from marasmus, they will have all this symptoms। Okay, to cure diet should be with adequate protein and proper calorific value। That means the diet should contain proper quantity of carbohydrate, fat and protein। Now infant diet should include protein, carbohydrates and fat, right? That's what I'm saying। तो ये क्या है ना, बेसिकली इसका क्योर मतलब क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डिजीज है, न्यूट्रिशनल मतलब मैलन्यूट्रिशन है एक तरह से। तो ठीक से अगर न्यूट्रिशन बच्चे को दिया जाए तो दैट बेबी कैन रिकवर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, so that was the type of malnutrition we've discussed। Now apart from that, if we discuss, there are different types of nutrition we can see in the animal in the living world, that basically we can divide the mode of nutrition in the following types। First one is autotrophic nutrition। देखो autotrophic का मतलब क्या होता है, those organism who can prepare their own food, they are not dependent
on someone some other organism for their food. They can make their own food. Examples: plants or green plants, especially, right? Directly use the sunlight and they synthesize the organic molecules. So they are the autotrophs. They can produce their own. They can produce their own food, right? The green plants, they can produce their own food, and basically we can divide in some categories like photoautotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs matlab those who can prepare their food in the presence of sunlight. Okay, they are called photoautotrophs, and with the help of the photosynthetic pigments, that is your chloroplast, right? And chemoautotrophs matlab such nutrition are exclusive to the domain of prokarya, where the chemical energy produced by the oxidation of inorganic material are used instead of sunlight. यहाँ पे क्या है, स्पेशली एक स्पेशल तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर यूजिंग द केमिकल एनर्जी विच इज एक्चुअली दे आर गेटिंग फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, and they are not using the sunlight for the source of energy. Okay, so they are getting the energy directly from the chemical energy. So that's why those type of animals, those who do that, perform that, they are known as chemoautotrophs or chemosynthetic, and those who are actually using the sunlight to produce the food, they are called photosynthetic or photoautotroph. Okay. Now next is, so these are called autotrophs. These are types of the autotrophs. Heterotrophs means those animals or the organism who are depends on the other animals or other organism for their food, they are called heterotrophs. Okay, so if we say it more properly, then we can say these animals are depends on plants for obtaining organic materials by consuming products of plants. Example include the members of two kingdoms like exclusive fungi, animalia. तो हम जैसे एनिमल किंगडम में हम ह्यूमन आर आल्सो कमिंग अंडर द एनिमल किंगडम, सो we also not able to produce our own food. So for our food we depends on plant or other animal basically, right? So we are actually heterotrophs. So those animals, organisms who cannot make their own food and depends on the other animals or organisms, they are called heterotrophs. Now heterotroph can be divided into some other categories like holozoic, saprophytic, parasitic and osmotropic. Holozoic क्या है? When the whole plant or its part and the whole animal or its part or both are consumed with the help of enzymes. This exhibit variation due to the kind of food matter ingested and can be grouped. Okay. So ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा. So पिछले classes में, so I'm not discussing these things in detail like holozoic, saprozoic, parasitic and osmotropic. So osmotropic, parasitic, you all know. Saprophytes you also, I believe you have all done, all you have studied in the lower classes because these things were there in the lower classes, right? So saprophytic means when the decaying organic materials of the plant or the animal's origin are digested in extracellular manner and then consumed, right? So extracellularly जब कोई organism life form जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट करके फिर कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक. जैसे कौन है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, दे डू दैट. पैरासाइटिक मतलब किसी के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली अटैच होके या उसके बॉडी के अंदर जाके उससे न्यूट्रिशन गेन करके सर्वाइव करना, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक. ठीक है, दो तरह का हो सकता है, एंडो पैरासाइट हो सकता है, एक्टो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट मतलब एक्सटर्नली अटैच हो जाए होके मतलब जो एक्सटर्नली अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट. ऑस्मोट्रोपिक, now these animals which take ingested food material by diffusion through their body wall, अपने जो बॉडी वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू जो
जो फूड इंजेस्टेड, जो फूड मटेरियल है उसको इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोट्रॉपिक। एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा, देन टेनिया सोलियम एक्सेट्रा। ठीक है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था टेनिया सोलियम के बारे में, है ना। चलिए, so by that we have already finished the basic you know overview and the basic concept about the nutrition. What is nutrition, what is balanced diet, what are the different types of nutrition, and in that we have discussed vitamins, minerals in details, right. Now we will start the exact or the proper process or the system of digestive system in case of human being, and we'll discuss it in detail। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे शुरू में हम पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो अभी भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। ठीक है, और वो करता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फूड जो है, अभी हमने बात किया ना, फूड जो है दैट इज एक्चुअली द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना, सबको फूड चाहिए। व्हाई? बिकॉज फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Now there are two types of organisms we have discussed. One who can make their own food, those are called autotrophs. Second, those who do not have the capacity to make their own food, that is heterotroph. ठीक है, तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसे बोलते हैं मोटोट्रॉफ, जो नहीं बना सकते उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। लेकिन खाना या फूड जिसको हम कहते हैं, वो सबको चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्योंकि बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ देयर एनर्जी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, even though if you're autotrophs or you're heterotrophs, every organism, every animal, they need energy, that means they need food, right। अब देखो, जो न्यूट्रिशन होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ taking in nutrients in food which are needed for maintenance of body processes and energy requirement। जैसे अभी मैंने बताया कि फूड जो होता है मेन सोर्स होता है। फूड में होता क्या है? फूड में होता है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स होता है। एक्चुअली अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड में होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले या मतलब पिछले लेक्चर्स में कि जो बैलेंस डाइट में हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इसके बारे में हमने बात किया, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स ये सब हमारे बॉडी में उनको जरूरत है। क्यों? for the maintenance of the body and for the energy as a energy source। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है उसका अलग अलग फंक्शन होता है, हमने डिस्कस किया है ना। और मिलेगा किससे? ये फूड से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस नेक्स्ट, हाउ वी आर गेटिंग दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। देखो, फूड में जो है ये न्यूट्रिएंट जो है वो रहता है इन अ कॉम्पैक्ट स्टेट। So what we need to do it when we eat, so we break down the food particle into the smallest possible unit। ठीक है, and then we are getting because the nutrient is present in the smallest possible unit only। okay, मतलब अगर हम मान लीजिए पोटैटो खाते तो हमें स्टार्च मिलेगा, तो स्टार्च को हम ब्रेक करेंगे तो उससे हमें जो अदर जो मतलब डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड मिलेगा। उसके बाद हम उससे हमें फिर फाइनली एनर्जी मिलेगा। ठीक है, जैसे हम राइस खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हम कैसे हमें वो मिलता है? बिकॉज वी आर ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल टू इट्स स्मॉलेस्ट सब यूनिट टू गेट द न्यूट्रिएंट, बिकॉज न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड। ठीक है, तो हमें फूड को ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद हमें न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच वी एक्चुअली टेक द फूड, ब्रेक इट एंड एक्चुअली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन from that food, the entire process is called digestive system। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर डिस्कस करेंगे, सो देयर आर like 4 different parts we can talk। like first is digestive system, then digestion of the food, then absorption and assimilation, and then last one is disorder related to digestive system। ठीक है, एक तो है डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन ऑफ द फूड, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। मतलब क्या है? पहला तो फूड को लेना, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, मतलब उसको ब्रेक करना। उसके बाद जब न्यूट्रिशन ब्रेक होके हमें न्यूट्रिशन मिल जाए, मतलब न्यूट्रिएंट मिल जाए, उसको एब्जॉर्ब करना, उसके बाद फिर उसको यूटिलाइज करना फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट, एनर्जी सोर्स के लिए और अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है,
तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली 5 स्टेप में। फर्स्ट है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन, देन फोर्थ है एसिमिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एसिमिलेशन कर लेना, मैंने एसिमिलेटेड लिखा है, आप लोगों को एसिमिलेशन कर लेना। ठीक है, एसिमिलेशन। Last one is digestion. After everything, the unwanted or the waste, okay, or unused material. So that waste material that should be get out from the body, and that is called digestion. ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस हमने देखा, 5 प्रोसेस जो है, ये आपका सारे ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम लगभग सेम होता है। सारे जो ऑर्गेनिज्म में यही करते हैं। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक मतलब मान लो अमीबा का ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, पहले वो फूड पार्टिकल को अपने बॉडी में by the process of phagocytosis it will take it inside, then it will digest it, then it will absorb the nutrition from it, and then after that the waste material it will make it out of the body by the process of exocytosis। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस है, ये 5 प्रोसेस हमेशा ही होता है, फॉलो होता है, लेकिन उसके कंडीशंस अलग हो सकते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन ये स्टेप जो है वो मैक्सिमम सारे एनिमल्स में सेम है। ठीक है, लगभग मैक्सिमम एनिमल्स में ये सेम ही है। मे बी देयर आर सम फ्यू एक्सेप्शंस। ओके, नाउ नाउ अब देखो इंसान के केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, और जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल जो आपके एडवांस और जो मोस्ट यू नो दोज हु आर एक्चुअली एनिमल्स व्हिच आर मोर evolved, more complex, higher animals, they have developed this alimentary canal, and we or the human being also have the alimentary canal, just like the mammals में भी alimentary canal होता है। ठीक है, अभी जो alimentary canal है, we call it it's actually this is the digestive system। The entire alimentary canal start from the mouth and it ends at anus, and it perform the entire process what we have just discussed, that all the 5 steps: digestion, digestion, absorption, assimilation, and ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, ये सारा स्टेप इसी में होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा एंटीरियर पार्ट है उसको हम बोलते हैं माउथ, एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, सो हम बात अभी डिस्कस करेंगे एक के बाद एक डिटेल में। नाउ माउथ मतलब जो हमारा एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं माउथ, एंड इट लीड्स टू अ स्पेस। माउथ के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट स्पेस रहता है इसको हम बोलते हैं व्हिच इज कॉल्ड द बकल कैविटी, और द कैविटी व्हिच इज known as the buccal cavity। then after the buccal cavity we have the next part that is called pharynx। थोड़ा सा ये समझना होगा कि pharynx हम किसको बोलते हैं। कि देखिए जैसे हमारा माउथ है, उसके बाद जो अंदर में हमारा just immediately after the space of the cavity what we have that is called buccal cavity, and immediately after that it is we have in the next area or the region that is called pharynx। देखो pharynx जो है ना वो एक रीजन, एक एरिया है, उसको हम pharynx बोलते हैं। बकल कैविटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस तक, ठीक है, उसके बीच में जो रीजन है फनल टाइप, एक फनल शेप का होगा जो आप देख सकते हो। सो जस्ट लेट मी ट्राई टू शो यू, so then we can discuss it easy for you to understand that what I am discussing and what I am trying to say। Okay, so yeah, so देखिए, so this is a basic diagram of the entire digestive system of the alimentary canal in case of the human। So if you can see it clearly, so everything is visible very clearly। First is you can see this is the anterior part, this is the anterior part this is called mouth, and immediately after the mouth you have the oral cavity, or we can say the buccal cavity, then you have the tongue, and immediately after that you have the this is the area, this is called pharynx। You can see this is the area of the region। एक्चुअली में pharynx जो है ना उसको हम ऐसे देख सकते हैं अगर आप देखोगे कि if someone is this is I'm just trying to draw it very easily
to make you understand. So अगर आप देखोगे कि this is the mouth, right? So this is the chin and then it's going down here. So यहाँ पे मुझे थोड़ा इधर और बनाना चाहिए था. Just let me try to draw it here. Yeah. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, just a minute, just give me a minute. Let me draw it clearly. Yeah. तो आप देखोगे कि this is just immediately after the chin. If you see, yes. So this is the nose, this is the nose, and this is the mouth part, right? And immediately after the mouth part, if you see, this is the area, and from here, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से esophagus स्टार्ट हो जाएगा ना? तो माउथ के बाद ये बकल कैविटी है अंदर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे फनल शेप जो अंदर नीचे की तरफ आ रहा है towards the pharynx, sorry, towards the esophagus, दोनों साइड से होगा ना? ये जो फनल शेप रीजन है एक्चुअली, देखो फेरिंग्स कोई ऑर्गन नहीं है, फेरिंग्स एक रीजन है. सबसे पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, समझना है आपको, फेरिंग्स इज एक्चुअली अ रीजन व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी अंटिल द ईसोफेगस. बकल कैविटी से ईसोफेगस तक एक जगह है जो कि जिसको हम देखते हैं ना फनल शेप, हमारे 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 जो हेड से लेके ईसोफेगस तक, जो मतलब हमारे हेड पार्ट से हमारा जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट जो कनेक्ट होता है ईसोफेगस के साथ, उसके बिल्कुल बीच में जो जगह है, ठीक है, जो रीजन है फनल शेप, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. ठीक है. और फेरिंग्स के भी कितने पार्ट होते हैं? फेरिंग्स के भी फेरिंग्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स. ठीक है. नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ओरोफेरिंग्स मतलब बीच वाला पार्ट, लैरिंगोफेरिंग्स मतलब लास्ट वाला पार्ट. ईसोफेगस से नियर, जो ईसोफेगस के पास है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, जो मिडिल में उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो इंटरनल लेयर्स, मतलब जो इंटरनल लेयर्स जहां पे है उसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स. अभी इंटरनल लेयर्स क्या है आपको भी समझ में आएगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम. Okay, so this diagram will make you just let us have a look and quick review or quick overview on the basic structure of the digestive system. So we'll move on and discuss it detail. तो ये pharynx है. उसके बाद अगर आप देखोगे then we have the salivary gland which are present this area, this region, like sublingual salivary gland, salivary, then mandibular gland. We'll discuss all the things in detail. Okay, parathyroid, salivary glands, everything we'll discuss. The next is esophagus and then pharynx. Pharynx, then we have the cervical part, जहाँ पे हमारा neck part है. Then this esophagus is coming down, and this is your called this thoracic part of the esophagus. Now this is the abdominal part of the esophagus, and then we can see there is a stomach connected with the esophagus. Then the stomach is connected with the intestinal part, right? That is your small intestine and the large intestine. They are also having some. The small intestine is having 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. Then after that, the intestine. Then we have the next part that is called means after the small intestine we have the other parts, that is the large intestine. So where we have other parts, right? Then we have the colon. Then we have the cecum. Then ascending colon, descending colon, all the parts. Then we have appendix here, right? And finally we have the transverse colon, then descending colon, then sigmoid, okay? And then rectum, and finally have the anus, okay? And here if you can see just beside the left side, you can see that we have the liver, then gallbladder. Then here there is a diaphragm which is separating the thoracic cavity with the abdominal cavity, right? So we'll discuss all the things in detail. So this is the basic diagrammatic representation of the digestive system. If you want, you can pause and you can draw, right? So let's draw. And now we'll start on discussing the things in detail. So these are the different parts of the alimentary canal. Now if you see, so first of all we have to start with the first part, that is called the buccal cavity. ठीक है, तो हम buccal cavity से start करेंगे. buccal cavity और सिंपली हम बोलेंगे ना पैलेट पार्ट. पैलेट क्या है ना, हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए this is a basic general diagram to make you understand. So what we can see here,
So this is the nostril. You can see this is the nostril, and this is the mouth. This is the anterior part of the alimentary canal on the mouth, and immediately mouth you have the cavity that is called buccal cavity, right? And the upper part of the buccal cavity, it is called palate. अभी जो अपर पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। जो ज्यादातर हिस्सा हिस्सा होता है, वन थर्ड जो हिस्सा होता है, और वो लगभग जो है मतलब हार्ड होता है, जो कि प्रॉपर बोन से बना होता है, इट इज बोनी इन नेचर। एंड द रेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट, दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। सो बोन से नहीं बना होता है। तो पैलेट जो दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक होता है हार्ड पार्ट जिसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। And in the just immediately after the nostril, if you see, I have marked here as an area which is called the nasal chamber, ठीक है, जो कि यहाँ से connect होता है। And then at here inside the buccal cavity, end of the buccal cavity before the esophagus start, in that area, this nostrils, this nasal chamber will come and it will open here. यहाँ पे nasal chamber का दो हमारा nostril में कितना pore है? We have two nostril, right? So here also we'll have टू इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स मतलब क्या है? नॉस्ट्रिल बाहर से जो है अंदर तक, यहाँ तक कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे आके इसका ओपनिंग होता है नॉस्ट्रिल का, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। नॉस्ट्रिल का जो इनर साइड में हमारे बकल कैविटी के बाद बिफोर द इन द फेरिंग्स रीजन, दैट इज कॉल्ड नासोफेरिंग्स रीजन, यहाँ पे ओपनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं, ओपनिंग रहता है, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, सॉरी इंटरनल नेयर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जस्ट लाइक ए स्मॉल आउटग्रोथ, यू नो लाइक स्मॉल एक्सटेंशन आपको दिखेगा, जो पैलेट का थोड़ा एक्सटेंशन आपको लगेगा। सो एक्चुअली में ये क्या है ना, इट्स एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, द कार्टिलेज, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट, एंड इट इज समवॉट लुकिंग हैंगिंग। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये हैंग हो रहा है, जैसे अगर आप कभी देखना कोई कार्टून में, या कोई अगर बहुत जोर से शाउट करता है तो आपको ये मतलब वहां पे वो दिखाता है कि अंदर में एक छोटा सा हैंगिंग, छोटा सा पार्ट जो कि मतलब हैंग कर रहा है, मतलब थोड़ा लटक रहा है ऐसा। तो वो वही जो स्ट्रक्चर एक्चुअली वो क्या है ना, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ द पैलेट पार्ट, इट्स अ कार्टिलेजिनस पार्ट, और उसका नाम क्या है? उसका कहते हैं उल्वा और यूव्यूला। यूव्यूला। So this is a mistake of the spelling, so you please correct, there is a mistake, यूव्यूला होगा, वी यू ला, यूव्यूला, ठीक है, यूव्यूला, तो उसको ठीक कर लेना, यूव्यूला, ठीक है। सो यू प्लीज करेक्ट दैट, दैट्स अ स्मॉल correction you need to do, fine. Now if you see, just immediately after the mouth part के बाद अगर आप देखोगे तो आप एक चीज you can see one thing very clearly. So I'm saying this again before we move on, that this is uvula, U V U L A, uvula, ठीक है। So uvula, please correct it, it's not ulva, it is uvula, 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 please correct it, okay, fine. Now अब देखो यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है, अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द माउथ हमारे पास क्या है? वी हैव लिप्स, अपर लिप्स एंड द लोअर लिप। सो जस्ट आफ्टर द अपर लिप, इफ यू सी दैट वी आर हैविंग आवर टीथ स्टार्ट, हमारा जो दांत है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो हमारा इंसीसर है, और उसके बाद जो लिप है, उसके बीच में जो रीजन, उसको हम बोलते हैं, उसके उस रीजन को जहां पे आप अपना टंग को लाते हैं ना, टंग को रख सकते हैं, रोल आउट कर सकते हैं, टंग को रोल कर सकते हैं, टंग को ला सकते हैं ना, हम रखते हैं ना दांतों के और मतलब आपके होंठों के बीच में जो एरिया है ऊपर की तरफ, अपर लिप की तरफ, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। देखो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है। दांतों के और लिप्स के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं हम इसे? वेस्टिब्यूल, ठीक है। Then we have the tongue, right? And then this is called the buccal cavity. This entire structure is called the buccal cavity. And then we have the pharynx. So basically the buccal cavity, it's having this many parts, we can discuss in detail basically.
First is your mouth, then the vestibule, which is the region present between the lips and the incisor or the teeth, right? Then we have the tongue, then the palate. Palate is having also two part basically, right? So basically अगर हम बात करेंगे कि जो पैलेट किसको हम बोलते हैं, द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज नोन एज पैलेट, ठीक है। और बकल कैविटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, द लोअर पार्ट वी हैव द टंग एंड द टीथ, अपर पार्ट में भी हमें टीथ मिलेगा। तो लेकिन जो रूफ पार्ट है उसे हम बोलते हैं पैलेट, एंड द एंटीरियर पार्ट इज बोनी। जो पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, और जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज बोनी, दैट इज योर मैक्सिला एंड दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन। और जो एंटीरियर पार्ट होता है, द ब्रॉड प्लेट जो होता है, उसमें क्या है ना, इट्स हैविंग द रफ सर्फेसेस व्हिच इज नोन एज पैलेटाइन और रियूजेस, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो ये हमने देखा ना कि जो बोनी पार्ट है और जो हमारा जो ये पैलेट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे अगर आप अपना टंग लगा के देखोगे जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट है, तो वहां पे आपको थोड़ा इरेगुलर शेप्स जो है, यू कैन फील इट विद योर टंग इफ यू टच इट, यू कैन ट्राई एंड यू कैन टच इट नाउ, यू कैन फाइंड जो आपके टंग, आपके जो पैलेट का हिस्सा है, एंटीरियर पार्ट है, मतलब सामने वाला है पैलेट का जो हिस्सा है, आगे वाला, उसमें आप देखना शुरू में इमीडिएटली यू कैन फाइंड दैट देयर आर सम ridges are there, okay? So this ridges are actually ridges, you can say this ridges are actually responsible, or it is helpful for it means it actually the characteristic feature of the carnivores, like the it help us to hold the flesh when tearing and threshing, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें ये फीचर होता है, बिकॉज दे नीड इट, उनमें और ज्यादा डेवलप ज्यादा होता है, हमसे भी ज्यादा उनमें ये जो रीजन ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज दैट पार्ट इज हेल्पिंग दैट एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल, टू होल्ड द फ्लेश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीयरिंग एंड थ्रेशिंग, ठीक है। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कार्निवोर्स, राइट? बिकॉज दैट पार्ट इज प्रोवाइडिंग मोर ग्रिप टू द फ्लेश, okay, when they are eating it. Now, at the end part, the soft palate, there is a small structure which hanging known as uvula, ठीक है। तो ये तो पहला anterior part हो गया। अब इसके बाद जो posterior part है, so that posterior part, so before we move on, you can just pause and write down the point what I have discussed. So then we can move on to the next part. So yeah, so here we have the anterior part what I have discussed now. Now at the anterior part, after the anterior part, the end part is of the palate. The palate is your soft, where a small structure which is hanging, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है तो उसको ठीक कर लेना। यूव्यूला है, उल्वा नहीं है। उल्वा एक सीवीड का नाम होता है, ठीक है। उल्वा एक सीवीड है, लेकिन यूव्यूला ये इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, सेम स्पेलिंग, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नाउ तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, जो एंटीरियर पार्ट, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पैलेट का, वो सॉफ्ट होता है, एंड एट द एंड इट इज हैविंग ए हैंगिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड यूव्यूला। इसका काम क्या होता है पता है? अभी तो हमने ये पता कर लिया कि एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस हैंगिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है पता है आपको? इसका फंक्शन होता है जो इंटरनल नेयर्स, अभी हमने डिस्कस किया था ना, अभी डायग्राम में देखा था, जो नेजल चेंबर है वो बिल्कुल पैलेट के immediately just after the palate it is opening there side in the, it is there opening there in the pharynx region, है ना, nasopharynx बोलते हैं उसको। उस रीजन में जब ओपन होता है तो वहां पे जो यूव्यूला है ना, नॉर्मली इसको ये क्लोज करके रखता है। सो यूव्यूला इज नॉर्मली क्लोजेस दिस इंटरनल नेयर्स, ठीक है। और इंटरनल नेयर्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस ये हमें ना, जब हम कुछ भी जैसे पानी पीते हैं या कुछ भी हम कुछ भी कोई भी चीज हम स्वेलो करते हैं, एंगल्फ करते हैं, उसको हम निगलते हैं ना, that time it help us, you know, like to close the nasal chamber. As a result, the water or the food is not coming inside our nasal chamber. But आपको कभी न कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप खाना खाते समय या पानी पीते समय आपका जो पानी है या खाना है, कभी कभी आपके नाक में भी आ चुका है, आ जाता है। तो ये कब होता है पता है? अगर आपका ये यूव्यूला जो हमने अभी बात किया ना, अगर ये ठीक से क्लोज नहीं हुआ प्रॉपरली, तो जाके ये प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, उस समय आपका यूव्यूला ठीक से क्लोज नहीं हुआ, तो फिर देयर आर चांसेस दैट दैट वाटर कैन आल्सो कम इनसाइड द नेजल चेंबर। उस इसीलिए आपको देखना फिर उस समय बहुत जोर का खांसी आएगा, आपको बहुत कॉफिंग होगा, ठीक है, और आपके नाक में भी पानी आ जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो यूव्यूला का काम है ना, वो क्या करना है, वो हमारे जो इंटरनल नेयर्स है, जो नेजल चेंबर हमारे फेरिंग्स की मतलब हमारे बकल कैविटी के बाद अंदर की तरफ जो खुलता है, वो बंद रखना। कब बंद रखना? जब हम कुछ निगलते हैं तब, और कब? जब हम कुछ पानी पीते हैं, कभी जब कुछ भी स्वैलो करते हैं तब उसको बंद रखता है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज नॉट क्लोज प्रॉपरली, तब क्या होता है ना, हमारा जो नाक के अंदर पानी चला जाता है, हमारे नाक के अंदर खाना या फूड जो है वो भी चला जा सकता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है उस समय नाक के अंदर, क्योंकि नोज इज द nasal chamber is always filled with the very sensitive cells। ठीक है, तो ये आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस पक्का किया होगा। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द यूव्यूला। ठीक है, तो यूव्यूला का मेन फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे यूव्यूला, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना इसको। ठीक है, हर जगह पे स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, दिस इज नॉट उल्वा, अगेन दिस इज यूव्यूला, so please correct it now। So the extension uvula क्या है? It is the extension of the soft palate and it closes the internal nares while swallowing। तो uvula क्या है? It is nothing but the extension of the soft palate। soft palate का ही extension होता है, क्योंकि soft palate तो soft palate भी किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। uvula भी किससे बना है? कार्टिलेज से ही बना होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? It closes the internal nares while swallowing। जब हम कुछ भी निगलते हैं उसको, उस समय इंटरनल नेयर्स को ये बंद रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बकल कैविटी। नाउ आवर बकल कैविटी इज एक्चुअली लाइंड विद non-keratinized stratified squamous epithelium। So it is very very important we know this, because question can come anytime that the buccal cavity is lined with which type of epithelium। So it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium। ठीक है, तो stratified से आपने पढ़ा होगा, तो let me just remind you to help you recollect। stratified मतलब layers of cells। ठीक है, next, earlier it was believed that the palate have all the taste buds, but later on it was found that the most of the taste buds are on the tongue। देखो पहले क्या था ना, पहले हम इतना जब हमारा साइंस बायोलॉजी या जो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, तो उस समय हम क्या मानते थे? हम ये मानते थे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो टेस्ट आता है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें टेस्ट होता है ना, इधर इट विल बी स्वीट, इट विल बी सोर, इट विल बी बिटर, इट विल बी लाइक सॉल्टी, राइट। सो ऑल द डिफरेंट टेस्ट हम पहले ये मानते थे कि हमारे टंग में कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट बर्ड्स जो नहीं होते हैं, या टंग हमें कुछ भी फूड को टेस्ट करने में मदद नहीं करता। Instead of that, the palate is helping us। पहले हम ये मानते थे कि पैलेट में टेस्ट बर्ड्स होता है और पैलेट ही सारा चीजों को, सारे टेस्ट को डिटेक्ट करता है। लेकिन बाद में जब हमने स्टडी किया और भी हमने फर्दर डेवलपमेंट किया साइंस में, तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। हमारा जो मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टंग में होते हैं, इसीलिए हमको जो टंग है वो दैट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, राइट, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि पैलेट में बिल्कुल भी टेस्ट बर्ड नहीं है। सम टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द पैलेट एज वेल इन अ स्कैटर्ड फॉर्म, राइट। अब देखो पहले जमाने में शुरू में हमने जब ये मान लिया था कि पैलेट जो है दैट इज हैविंग द मेन टेस्ट बर्ड्स, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल द फूड like those foods which are tasty। okay, so normally we refer them as palatable or palatine or palatable। ठीक है, that's why एक adjective यूज करने लगे हम लोग palatable food मतलब tasty food। ठीक है, now next we'll talk about the teeth। ठीक है, अब देखो टीथ क्या है? टीथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी टीथ नहीं है, तो आप क्या आपके साथ क्या होगा? आप कोई भी खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि even if you take the rice or chapati or fish or whatever the food particles food you take, you have to chew the food, you have to make it you have to grind the food properly before you engulf it। हम जब कुछ भी खाते हैं तो हम उसको अच्छे से चबाते हैं ना, तो चबाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दांत होना चाहिए, टीथ होना चाहिए, है ना।
तो जिसके पास टीथ नहीं है तो वो चबा नहीं पाएगा। और मैं आपको एक चीज बहुत बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे सलाइवा जो होता है, हमारे बकल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। That is also helping to break down the food particle, basic food particles like carbohydrates. It's all start in the buccal cavity itself. लेकिन फर्दर ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड पार्टिकल्स को अच्छे से हमें चू करना पड़ेगा, उसको अच्छे से फाइन पीसेस बनाना पड़ेगा, उसको अच्छे से मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए दांत जो है या टीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अलग अलग एनिमल्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास अलग अलग तरह के जो सेट्स है अलग अलग कंडीशंस में उनको मिलते हैं। ठीक है, पहला आप डिस्कस करेंगे, पहला मोनोफायोडोन। ठीक है, मतलब जिसका मतलब एक बार ही, मतलब पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही जो दांत है वो उनका निकलता है या उनको मिलता है। ठीक है, जैसे वेल है, देन प्रोटोनिम्स है इनको। ठीक है, डाइफायोडोन का मतलब होता है कि दो बार लाइफ टाइम में दो बार मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को अगर मिलता है टीथ और उन्हें टीथ बनता है, उसे हम बोलते हैं डाइफायोडोन। जैसे मैन मतलब ह्यूमन में ऐसा होता है, एप्स में ऐसा होता है, मंकीज में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप सबको एक्सपीरियंस होगा बचपन में, आपके जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ थे, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, वो सब आपका चला गया होगा। आप उसके बाद आपका सेकेंड सेट ऑफ जो टीथ है वो आपको मिला होगा। सबको अभी तक वो ये एक्सपीरियंस सबको है ना। सो वी हैव इन आवर लाइफ टाइम वी गेट टू सेट ऑफ टीथ। ठीक है, तो सेकेंड जो सेट ऑफ टीथ है ये परमानेंट होता है। अगर इसको आपने लॉस कर दिया, इफ यू लूज these teeth, the second set of teeth, there is no chance that you will get the teeth again back. ठीक है, सो जो अपने लाइफ टाइम में दो बार जो टीथ है जो मिल सकता है, जिनको मिलता है, उसे हम बोलते हैं डाइफायोडोन। जैसे हम हैं, ह्यूमन हैं, एप्स हैं, मंकीज हैं, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीफायोडोन, मेनी सेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा है कि इनके अगर दांत गिर जाएं तो इनके बार बार दांत आ जाएंगे। ठीक है, बार बार, पॉली मतलब बार बार, मेनी टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना बार भी दांत गिर गया उतना बार आ जाएगा। ठीक है, एज सून एज द टीथ फॉल, यहाँ पे फॉल होगा, फुल नहीं है, फॉल्स ऑफ, FALL, फॉल, falls off or fall off, they get the new one throughout their life। बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि अगर आपका दांत टूट जाए, फिर से आपको दांत आ जाएगा, फिर से टूट जाए, फिर से आ जाएगा, ऐसा है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनमें ऐसा होता है? जैसे फिशेस है, एम्फीबियंस है, इनमें ऐसा होता है कि इनके दांत एक बार चले जाए, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं ना, ये उनके जो जॉ होते हैं, जो मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है, उनके साथ बहुत ही सुपरफिशियली अटैच होता है। कोई प्रॉपर सॉकेट नहीं होता, जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल में। तो इसीलिए जब भी वो उनके जो दांत है बहुत जल्दी मतलब गिर सकते हैं, इसीलिए गिर भी जाते हैं, तो फिर नया जो सेट है वो बन भी जाता है फटाफट। ठीक है, तो इसीलिए बार बार होता है, इसको बोलते हैं पॉलीफायोडोन। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया था, जो टीथ को हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेट what an organism are getting in their own whole lifetime. So in that context, we have discovered getting the three categories: monophyodon, diphyodon, and polyphyodon. The next category is shape of the teeth. टीथ के शेप के बेसिस में भी हमने टीथ को डिफाइन किया है, उसको अलग अलग तरीके से मतलब कैटेगराइज किया है। पहला होता है होमोडोन, जिसमें क्या होता है, सारे जो दांत होते हैं वो इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, जैसे फिशेस है, एम्फीबियंस, उनमें जितने भी दांत है सब एक ही सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोड्रॉन, इसमें क्या होता है, अलग अलग टीथ, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे केस में है ना। हमारे केस में क्या है, आप देखोगे, वी हैव दी मंकी के केस में, हमारे केस में, एप्स के केस में, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। वी हैव इंसिसर्स, वी हैव कैनाइन, वी हैव प्रीमोलर, वी हैव मोलर। इंसिसर का काम क्या है, कटिंग करना। कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग करना। प्रीमोलर का काम है ग्राइंडिंग करना। मोल का काम होता है, उसका भी काम ग्राइंडिंग होता है। मोलर थोड़ा छोटा होता है, सॉरी, प्रीमोलर थोड़ा छोटा होता है, मोलर थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो on the basis of this we can also divide, on the basis of the shape and size we can divide the teeth in different categories. Like in case of us it is incisor, canine, premolar and molar। तो सबका जो आपका
फंक्शन है वो भी अलग है और जो शेप है वो भी अलग होता है, ठीक है. So we'll discuss this much only today. In next class, the next video lecture, we'll discuss the dental formula and the other different things, means other different criteria by which, on the basis of which we can divide the teeth, and we'll see the other different parts of the digestive system in detail. Okay. So till then, take care. Be at home. Stay safe.